Right. So you can write for any point O dash, for any point O dash on the screen, for any point O dash on the screen, where the waves diffracted through an angle theta reaches, where the waves diffracted through an angle theta reaches, path difference between the waves from A and B is d sine theta. Path difference between the waves from A and B is d sine theta. Next paragraph में लिखो. If d sine theta is equals to lambda, if d sine theta is equal to lambda, then corresponding to any point in the region AC, corresponding to any point in the region AC, there is a point in the region CB. There is a point in the region CB with which path differences lambda by 2. Path differences lambda by 2. Therefore, waves from AC and CB, waves from different points of AC and CB superimpose destructively to form first secondary minima. या first minima लिख लो Bishop, to form first minima. Similarly, next paragraph में similarly, if d sine theta is equals to 2 lambda, similarly if d sine theta is equals to 2 lambda, then wavefront can be divided into 4 parts. Wavefront can be divided into 4 parts. Destructive superposition takes place. Destructive superposition takes place between the neighboring parts of a wavefront and secondary minima is formed. So superposition takes place between neighboring parts and secondary minima is formed. And secondary minima is formed. Thus in general, if d sine theta is equals to n lambda, if d sine theta is equal to n lambda, a minima is formed. D sine theta is equal to n lambda, a minima is formed. Bracket में लिखो nth minima. Nth minima. Again, next paragraph में. If d sine theta is equals to 3 lambda by 2. D sine theta is equals to 3 lambda by 2. We divide the wavefront AB
into three parts. Destructive superposition takes place. Between two neighboring parts and light from third part reaches point O dash, forming first secondary maxima. Forming first secondary maximum. In general, if d sin theta is equals to 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 bracket में 2n plus 1 lambda by 2, then nth secondary maxima is formed. nth secondary maxima is formed. अब मैंने क्या बताया, ये पहले जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो समझ लो. मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक स्लिट है, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये सेंटर है, पाथ डिफरेंस हमने लिया ये डिस्टेंस. अगर ए और बी में पाथ डिफरेंस जो है इट्स लैम्डा, तो ए और सी में इट विल बी लैम्डा बाय 2 और सी और बी में भी लैम्डा बाय 2, बिकॉज इन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, सी और बी में भी लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. What we have written is that corresponding to any point, because ये पूरा डिस्टेंस di अगर d by 2 होगा तो this would be, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस d by 2 है तो पाथ डिफरेंस इज d sin theta by 2. मैं कह रहा हूँ अगर ये लैम्डा है तो दिस विल बी लैम्डा by 2 corresponding to any point. मैंने इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट लिया, मान लो P1, इसके corresponding इस रीजन में एक पॉइंट होगा P2 जिस सच दैट इन दोनों में डिस्टेंस d by 2 है और पाथ डिफरेंस लैम्डा by 2 है. तो इन दोनों पॉइंट्स में जो वेव आएंगी दे विल सुपर इम्पोज डिस्ट्रक्टिवली. तो हम लेंगे कि इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले रीजन में एक पॉइंट होगा जिसके साथ उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा by 2 होगा. वो वेव्स आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगे और कैंसिल आउट कर जाएंगे एंड मिनिमा बन जाएगा. तो हमने कहा कि अगर 2 लैम्डा है तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. टोटल पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो नेबरिंग पाथ्स में लैम्डा by 2 बनेगा. इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एंड मिनिमाइज फॉर्म. तो अगर आप इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो विद द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा by 2 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. बट अगर 3 लैम्डा by 2 है, मैंने 3 पार्ट्स किए, से ये डिस्टेंस d by 3, ये भी d by 3, ये भी d by 3, and d sin theta is 3 lambda by 2. तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा by 2, इनमें भी लैम्डा by 2, इनमें भी. ये तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए कि इस रीजन में से ए C1 और C1 C2 ये दो आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर गए. इसके साथ किसी ने नहीं किया तो लाइट फ्रॉम थर्ड पार्ट रीचेस पॉइंट O
फॉर्मिंग अ सेकेंडरी मैक्सिमा। 5 पार्ट्स कर देंगे तो 4 कैंसल आउट कर जाएंगे, 5th पार्ट पहुंच जाएगा, 7 कर देंगे तो 6 पार्ट्स कैंसल आउट कर जाएंगे, 7th की लाइट पहुंच जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी का, इंटरफेरेंस में हमने सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम रखी थी। ये फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे भी फर्स्ट मिनिमा। ये विड्थ कितनी होगी पहले तो? अगर मैं आपसे विड्थ पूछूं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसके लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट मिनिमा इज एट अ पॉइंट वेयर d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये विड्थ कैसे निकलेगी? ये भी हम थीटा ले रहे हैं, हमने ये y निकालना है। वी आर सेइंग इस पॉइंट के लिए d sin थीटा लैम्डा के इक्वल है। अगर थीटा स्मॉल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज sin थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा इज y by d। तो y कितना आ गया? ये डिस्टेंस आया d लैम्डा by d। सिमिलरली ये भी d लैम्डा by d। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी? 2d लैम्डा by d। इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम बनाई थी, इसमें इंटेंसिटी को हम कम करना शुरू कर देंगे, कम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज फर्स्ट में हमने ऐसे बनाई तो सेकेंड इज लाइक दिस, और कम और कम। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई आई एम डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी? बिकॉज दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पे सारी वेव सुपर इम्पोज कर दी थी, ऐसे 1/3 पार्ट की पहुंची थी, 1/3 पार्ट। और फिर अगले में 1/5 की, फिर 1/7 की। तो वो जिस रीजन से वेव्स आ रही हैं वो रीजन कम होता जा रहा है, तो इसलिए हम इंटेंसिटी को कम कर दें। अब इसकी विड्थ है 2d लैम्डा बाय d। अगर मैं नेक्स्ट की विड्थ निकालूं, ये कितनी होगी? 2d lambda by 3d। विड्थ निकालनी है, विड्थ निकालनी है इस पॉइंट के लिए d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, इस पॉइंट के लिए d sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, सेकेंड के लिए। तो ये विड्थ कितनी होगी? अब अगर प्रैक्टिकली सोचो, तो y कितना होगा? y d lambda by 2d। ये एंगल अगर अल्फा है तो कैसे करें? अल्फा किसके इक्वल है? मतलब सेंट्रल मैक्सिमा बनाया था हमने यहाँ पे मान लो फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे सेकेंड मिनिमा, और मैं कह दूं ये एंगल अल्फा। तो अल्फा इज सेकेंड मिनिमा के लिए, अगर थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो अल्फा इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये विड्थ कितनी होगी? हमारे पास कंडीशंस हैं, d sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, d sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1,
अरे यार अब तो बता दो। मैथ्स तो कर दो थोड़ा सा। अच्छा ऐसे बताओ, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 कितना होगा? साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अगर थीटा स्मॉल है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और यही अल्फा है, और अल्फा को मैं वाई बाई डी लिख सकता हूँ। मतलब सेकेंड की विड्थ जो होगी दिस इज डी लैम्डा बाई डी। थर्ड की भी यही, फोर्थ की भी यही, फिफ्थ की भी यही, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का होता है। बिकॉज जब मैंने सेकेंड और थर्ड में डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई डी माइनस 2 लैम्डा बाई डी, फिर 4 लैम्डा बाई डी माइनस 3 लैम्डा बाई डी। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का है, बाकी सबके विड्थ 3 लैम्डा बाई डी है। तो जब आपको डिफरेंसेस लिखने आएंगे, जो मैंने आपको बोला था कि बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, तो डिफरेंसेस क्या लिखोगे? 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखने होते हैं। कौन कौन से? पहले तो ओरिजिन ही। Interference is superposition of waves coming from two different independent point sources. इसमें superposition takes place between waves coming from two parts of a same wavefront. दूसरा difference, interference में maximas, all the maximas will have same intensity. इस केस में the intensity of maxima goes on decreasing as we move away from the center of screen. और third difference, in interference all the maximas are of the same width. In diffraction, central maxima is double the width as that of the secondary maximas. समझ में आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स? अब जो मैं आपको कह रहा था मैं आपको बताता हूँ कि गलत क्या। हमने जैसे कहा, मान लो मैंने कहा कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन दोनों में पार्ट डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 2 ए और बी। ठीक, इन दोनों को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर दिया और हमने कहा कि सिर्फ इसकी लाइट पहुंची। बट अगर मैं इधर एक पॉइंट लेता हूँ और एक पॉइंट इधर ले लेता हूँ, इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा फर्स्ट और थर्ड में? अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक इधर लिया और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस लिया, तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, अगर टोटल 3 लैम्डा बाय 2 है तो। Yes. हो सकता और है अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो मैक्सिमा बनना चाहिए या मिनिमा? मैक्सिमम। Max. मैक्सिमा। सिमिलरली जब मैंने 5 पार्ट्स किए और मैंने कहा पाथ डिफरेंसेस लैम्डा बाय 2, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, इन दोनों को, बट इन दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इनमें भी कंस्ट्रक्टिव होगी और फिर इसमें भी कंस्ट्रक्टिव होगी, तो हमें उस सब में जाना ही नहीं है। हमने यही एक्सप्लेनेशन देनी है जो आपको लिखा दी बस, कि 1/3 पार्ट की लाइट पहुंची, 1/5 की लाइट पहुंची, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ द सिस्टम वीडियो इज। ऑडियो दोनों बार-बार पॉज हो रही है। क्या चीज? समझ आपकी आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही? सर वीडियो सर बार बंद है बिल्कुल? स्लो। देखता हूँ मैं, एक मिनट। आ रही है या नहीं आ रही अभी? आ रही है आवाज या नहीं आ रही? वीडियो और ऑडियो नहीं आ रही क्लियर?
सर अपडेट है। पता नहीं यार, मैंने ना जो माइक लगाया हुआ है वायर्ड है, और वो मेरे पैर के नीचे उसकी वायर आ गई थी, कहीं टूट ना गई हो बीच में से, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर मतलब अब आ आवाज। रही है। अभी तो सब मैं ठीक है। लैपटॉप के पास बैठ गया हूँ। मैं अभी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लिखाता हूँ, उसके बाद फिर नहीं आएगी तो देखते हैं, फिर मेरे को कोई और माइक लगाना सर पड़ेगा अभी बाहर। बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है कि वो भी ब्लर्ड है? हाँ जी सर, बोर्ड भी ब्लर हो गया और वीडियो भी पॉज हो गया। आपका नेट स्लो दिखा हाँ जी हेडलाइंस आ रही हैं। नेट- ओके ओके ओके, फिर तो नेट का इशू है, वो तो यहाँ से देखते हैं। बोर्ड क्लियर हो तो बताना मेरे को। सर सब आवाज आ रही है, एक बार आप रिपीट कर दो जो आप लास्ट में बता रहे थे। मैंने लास्ट में ये समझ आया कि मैंने वो मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा कि फर्स्ट और थर्ड में कंस्ट्रक्टिव होगी या फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में। सर यहाँ तक सुन लिया था, फर्स्ट और थर्ड में कंस्ट्रक्टिव होगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव का उसके जो आप बाद तो बता मैंने ये बताया था कि ये वाली एक्सप्लेनेशन हमने नहीं यूज करनी, जो लिखाई है बस उतना ही करना। आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड में कंस्ट्रक्टिव क्यों हो रही है, सेकंड और फोर्थ में कंस्ट्रक्टिव हो रही है, हम वो क्यों नहीं कंसिडर कर रहे। तो जो आपको पेपर में लिखनी है वो बता दी, और इस पे कुछ बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाले इसमें कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि आपको एक्चुअल एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े कभी। बट इस बार ये जो जेई 3 और हुआ है उसमें ना बहुत प्रॉब्लम आई है कुछ बच्चों को। अब नीट होगा तो कुछ और आइडिया भी लग जाएगा, नीट अभी क्योंकि होना है। बोर्ड ने जेई 2 तक तो बहुत अच्छे से पेपर लिए हैं और कोई इशू रहा नहीं है। जेई 3 में उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लिटरली मतलब खराब कर दिया। खराब कर दिया इन द सेंस कि जैसे 25 जुलाई को जो जेई मेंस हुआ उसमें मैथ्स के पेपर में 30 क्वेश्चन अगर आए, 25 करने हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाइनोमियल और वेक्टर, ये बेसिकली मैथ्स के बहुत दो छोटे चैप्टर हैं, इनमें से 9 क्वेश्चन डाल दिए। मतलब 30% पेपर अब दो छोटे चैप्टर्स में से डाल रहे हो। सिमिलरली फिजिक्स के एक सेट में उन्होंने किया कि एक सेट मतलब मॉर्निंग सेट है जिसमें ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ना रे ऑप्टिक्स का ना वेव ऑप्टिक्स का, कोई क्वेश्चन नहीं डाला। और उसी दिन इवनिंग सेट में ऑप्टिक्स के 9 क्वेश्चन डाल दिए। तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रख रही, पता नहीं क्यों कर रहा है एनटीए ऐसे। बिकॉज टीचर्स ने तो पॉइंट आउट किया है, अगर ये ठीक करें नीट के टाइम पे, बिकॉज ऐसे पेपर नहीं होना चाहिए ना कि अगर कोई बच्चा ऑप्टिक्स छोड़ के गया तो उसके 9 क्वेश्चन सीधे उड़ गया, बाइनोमियल नहीं करके गया तो उसके 6 क्वेश्चन हुए, बाइनोमियल के 6 क्वेश्चन डाल दिए, जबकि बाइनोमियल बहुत छोटा चैप्टर है। बट अगर ऐसे ही रहता है तो फिर हम ये बोलते हैं कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, पता नहीं वो किसमें से डालेंगे। नॉर्मली कई बार ये होता है कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, हम 12th क्लास में कई बार ही बोलते हैं, 11th से जो पढ़ रहे हैं उनको तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो 11th से कंसिस्टेंटली पढ़े हैं आप तो पूरा सिलेबस करके जाओगे। जो 11th में बहुत सीरियसली नहीं पढ़े, 12th में पढ़ना शुरू है, उनको मैं बोलता हूँ कि आप 11th के इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक तो कर लो, कि थर्मोडायनेमिक्स कर लो, एसएचएम वेव्स कर लो, रोटेशन कर लो। और जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है जैसे काइनेमैटिक्स उनमें से आता है तो इसको छोड़ दो, काइनेमैटिक्स करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा, वेटेज एक ही क्वेश्चन आना है। या लॉज ऑफ मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर एक आते हैं, कई बार एक भी नहीं आता, तो ऐसे छोड़ दो। बट अगर ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी फिर आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, फिर तो आपको सब करके जाना पड़ेगा, अगर इस तरह से उन्होंने वेटेज करनी है कि किसी भी चैप्टर में से कितने भी क्वेश्चन डाल दें। बिकॉज मेरे को बायो के टीचर ने भी बोला कि यूनिफॉर्म वेटेज शायद इस बार ही नहीं रखेंगे वो, क्योंकि कहते हैं उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर को इशू किया, उसमें भी इसी तरह से गंद डाला हुआ। जबकि पिछले साल तक होता था कि एक पैटर्न होता था कि जैसे फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, जो हमारा पार्ट रह गया, मतलब डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, नीट में इसके 9 क्वेश्चन हर बार ही आते हैं। तो हम नॉर्मली सबको बोलते थे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं कि डुअल नेचर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर तो इतनी अच्छी तरह से करके जाओ कि ये 9 क्वेश्चन में से एक भी गलत ना हो।
बिकॉज अगर आप इसकी हर बुक कर दोगे ना, आपके पास अगर 4 किताबें, आपने चारों की चारों बुक सॉल्व कर दी हैं, आपके पास किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, एलेंस के, आकाश के, किसी के भी, प्लस यहाँ पे जो आपको असाइनमेंट मिली, तो अगर वो सारी भी करनी चाहोगे तो आपको मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे सब बुक सॉल्व करने में। Whereas अगर 9 क्वेश्चन पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में से आते हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करनी है तो 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते थे कि ये करके ही जाओ, इनमें से क्वेश्चन आना ही है। जैसे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जनरली, मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी। तो ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, मतलब जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है, टर्म 2 का सिलेबस बोर्ड ने भी देखो तो सिर्फ उन्होंने कहा शायद 45 डेज में टर्म 2 का कराना है। 45 पीरियड्स एंड बोर्ड का पीरियड 35 मिनट्स का होता है। तो बोर्ड खुद ही कह रहा है कि 22 आवर्स में इसका सिलेबस खत्म कर दो। तो उसमें से क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, मतलब 9+6 आप इजीली मान के चल सकते हो कि 15 क्वेश्चन आएंगे। तो वो हमेशा ठीक होने चाहिए ऑप्टिक्स के और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन, बिकॉज ये टफ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कई बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। मेडिकल वालों के पास वैसे भी एरर बहुत, मतलब जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम है। अगर आपको नेशनल कॉलेज चाहिए तो नेशनल कॉलेज के लिए फिजिक्स में 170 तो चाहिए ही है 180 में से। तो 2 क्वेश्चन का चांस है बस। आपने 2 से 3 गलत कर दिए तो आप नेशनल से स्टेट कॉलेजेस पे आ जाते हो सीधा। तो आपको 170 लेने ही होते हैं अगर आपको नेशनल कॉलेज चाहिए कोई भी इंडिया का। फिजिक्स में 170 तो लेने ही पड़ेंगे। और जितने भी पिछले 3-4 साल में मेरे पास पढ़े हैं जलंधर के, मैं जनरल भी बात करूं, जितने भी बच्चे नेशनल कॉलेज में गए हैं सबके 175 मार्क्स आए थे। तो एक ही क्वेश्चन गलत था उनका, बाकी सारे ठीक थे। सो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो। पहले तो लिखो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। Width of central maxima. It is the distance between. It is the distance between first minima. It is the distance between first minima on either side of. It is the distance between first minima on either side of central maxima. On either side of central maxima. On either side of central maxima. इसके साथ ना डायग्राम बना लो छोटा सा एक। तो इसकी हेडिंग क्या थी? विथ ऑफ Width of central maxima. First minima. And width of central maxima is y or 2y? 2y. 2y. So 2d lambda by d. बोर्ड में ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में काफी बार ही आया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। नेक्स्ट टू राइट। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, चाहे तो टेबल बना लो चाहे 3 पॉइंट्स लिख लो, जैसे लिखना चाहते हो। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन।
Difference between interference and diffraction. Interference is the phenomena of superposition of. Interference is the phenomena of superposition of waves coming from two coherent sources S1 and S2. Two coherent sources S1 and S2. Whereas टेबल बना रहे हो तो दूसरी साइड, whereas diffraction is the phenomena of superposition of. Diffraction is the phenomena of superposition of waves coming from two parts of the same wavefront. Phenomena of superposition of waves coming from two parts of the same wavefront. Second is an interference. Intensity of all the maximas is same. In interference, intensity of all the maximas is same. Whereas in diffraction, intensity of secondary maxima, secondary maximas goes on decreasing. Intensity of secondary maximas goes on decreasing as the point on the screen moves away from the center of screen. As the point on a screen moves away from center of the screen. So as the Point on a screen moves away from center of the screen. Third is in interference, fringe width of all the maximas is same. In interference, fringe width of all the maximas is same. Whereas in diffraction, width of central maxima is, whereas in diffraction, the width of central maxima is double the width of central maxima is double the width of, whereas in diffraction, width of central maxima is double the width of secondary maximas. Double the width of secondary maximas. So you can rate numerical based on this.
So you can write two wavelengths of sodium are 590 nanometer and 596 nanometer. Are used. Two wavelengths of sodium 590 nanometer and 596 nanometer are used. Actual में क्या होते हैं 5890 and 5896. So but इन्होंने different दिए 590 and 596 nanometer are used. Are used in turn to study the diffraction taking place at a single slit of aperture 4 millimeter. Distance between slit and screen is 2 meter. Calculate the separation between सर एक बार अपर्चर रिपीट कर दो और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड aperture to 4 millimeter. The distance between slit and screen is 2 meter. Calculate the separation between positions of first secondary maxima obtained in two cases. Secondary maxima wavelength के directly proportional distance पे बनेगा. मेरे पास अगर स्क्रीन है, अगर मैंने एक का 5890 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बनाया, येलो इज फॉर 5890, सॉरी 590. व्हाइट वाले के लिए इट्स 596. अगर वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी बढ़ेगी. तो अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा बनाता हूँ व्हाइट के लिए, मतलब इस वेवलेंथ के लिए 596 के लिए, तो दैट विल बी ऑफ दिस फॉर्म. फिर ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा यहाँ पे at a distance of y2. Whereas येलो के लिए जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा that will be somewhere over here. तो हमें y2 minus y1 बताना है कितना. फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन है d sin theta is equals to 3/2 lambda. तो sin theta is and y is so y2 minus y1 will be lambda 2 minus lambda 1. D is given as 2 meter, small d is 4 millimeter, and lambda 2 minus lambda 1 is 6 nanometer. ये वैल्यू निकालनी है. बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो क्या आ रहा है आंसर. 4.5 micrometer. 4.5 minus 6. Yes. So 4.5 into 10 to the power minus 6. 2017 और 2019 में आया ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में.
19 में से अब उन्होंने सेकंड के लिए वैल्यू पूछी थी, तो चेंज क्या करना था? सेकंड मैक्सिमस में डिस्टेंस, तो 3/2 की जगह 5/2. नेक्स्ट टू राइट. Estimate the angular separation. Estimate the angular separation between first order maximum and third minima. Estimate the angular separation between first order maximum and third minima of diffraction pattern due to single slit. Due to single slit of width 1 millimeter when light of 600 nanometer is used. When light of 600 nanometer is used. सर सेपरेशन बिटवीन के आगे आपने 1 डिग्री प्राइमरी मैक्सिमा के आगे क्या बोला था? मैंने बोला था सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा. ओके सर. मैं इसका अगर पैटर्न बनाऊं, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड और ये थर्ड, और ये फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. हमारे पास ऐसे स्क्रीन है. Angular spread means you have to find this angle, alpha. Angular spread between third minima and first maxima. तो ये एंगल बताना है कितना. For first maxima, d sin theta is 3/2. 3/2 lambda. For third minima, 3 lambda. 3 lambda. मतलब ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1. तो θ2 माइनस θ1 बताना है. sin θ2 माइनस sin θ1 कितना हो जाएगा? यही आएगा. एंड इफ थीटा इज स्मॉल, तो sin θ इज इक्वल्स टू θ, और यही अल्फा है. लैम्डा हमें गिवन है 600 नैनोमीटर. d is 1 मिलीमीटर. ये सॉल्व कर दो. समझ में आया कैसे किया? आंसर देखो क्या आ रहा है. 9 into 10 minus 9 into 10 raised to power -2 क्या लिखूं आगे? मीटर. रेडियन. हाँ रेडियन. एंगल नहीं निकाला, मीटर कहां से आएगा? क्लियर है सबको ये? Yes. नेक्स्ट इज, बोर्ड में वैसे सिंपल ही क्वेश्चन आए हुए हैं सारे. In Fraunhofer diffraction pattern, in Fraunhofer diffraction pattern, single slit of width 0.2 millimeter is used.
single slit of width 0.2 millimeter is used and screen is 2 meter away. सर वेट कितनी है? 0.2 millimeter and screen is 2 meter away. The first minima lies at a distance of 5 millimeter from center of screen. Find wavelength of light used. बिल्कुल फ्री वाले नंबर. Find wavelength of light used. तो 5 millimeter किसकी वैल्यू दी है? फाइव मिलीमीटर किसकी वैल्यू दी है? ये वैल्यू दी है 5 y की. फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा. तो y इज इक्वल टू d लैम्डा बाय d. तो ये वैल्यू दे दी d लैम्डा बाय d की 5. d दिया है 2, स्मॉल d दिया है 2 मिलीमीटर, ये दिया 5 मिलीमीटर. लैम्डा बताना है. सो हमें गिवन है can say lambda is equals to yd by capital D. Y is 5 millimeter. So आंसर निकाल लो क्या आता है. 5 into 10 to the power minus 7. $5,000 angstrom. So कल करते हैं. बट इसके आगे आपने अब केमिस्ट्री में पोलराइजेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? केमिस्ट्री में पोलराइजेशन